نثار احمد کھوڑو صاحب، نثار احمد کھوڑو صاحب سر آپ کی اسپیچ. شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں ایوان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پازیٹیو انداز میں اسمبلی کی پروسیڈنگ میں حصہ لیا. اپوزیشن کو خاص طور پر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سین نہیں دکھائے جو اس اسمبلی میں کبھی دکھائے جاتے تھے جہاں چارپائیاں لے آئی جاتی تھیں اسمبلی کے سیشن میں. کوئی بحث نہیں ہوتا تھا، کوئی بات نہیں ہوتی تھی، شور شرابے کے ساتھ ٹائم گزر جاتا تھا. اس سندھ اسمبلی کو اعزاز ہے کہ بجٹ کے سیشن میں مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 105 ارکان نے بھی کبھی اسمبلی میں بولا تھا. آج کی اسمبلی کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی کہ یہاں ممبران کو موقع ملا اور انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا اور اپنی باتیں کی. اپنی باتیں کی اس سندھ کے بارے میں، اپنی باتیں کی اپنے علاقوں کے بارے میں، جہاں جہاں کمزوری ہوئی اس کی نشاندہی کی. اور اسمبلی کے فلور پر اگر یہ نشاندہی نہ کی جائے تو پھر اور کہاں کی جائے. اس لیے اسمبلی ہی وہ فلور ہے، اسمبلی ہی فلور ہے جس میں بجٹ سیشن پہ، بجٹ ڈسکشن پر یو کین ٹاک اباؤٹ دا ورلڈ. اور بجٹ سیشن اس سے ہوتا ہے اور اس پہ آپ سب کا دل سے احترام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے تکالیف کی، آپ نے اسٹڈی کیا، موٹی موٹی کتابیں پڑھی، بجٹ ایٹ اے گلانس دیکھا ہوگا، سب کچھ دیکھا ہوگا اور آپ نے کچھ بولا تو اپنے علاقے کا حق ادا کیا آپ نے. اگر نہ بولتے تو کل آپ جا کے کیا بولتے اپنے گاؤں اپنے لوگوں کے سامنے کہ جی ہم چپ کر کے بیٹھ کے آ گئے. اسمبلی پر اکثر تو یہ طنز بھی ہوتا ہے کہ جی اتنے سارے ممبران تھے جنہوں نے اتنے دنوں میں کچھ نہیں بولا. تو اس روایت کو بھی آپ نے توڑا اور یہاں آپ نے سیر حاصل بحث کی اور سیر حاصل بحث کی بجٹ پر. اور بجٹ وہ ڈاکیومنٹ کہ جب آپ اسمبلی کے ممبران بجٹ کو پاس کریں گے تو ہی پھر حکومت ایک ٹکا بھی خرچ کرے گی تو آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. تو اس لیے آپ کا انتظار ہے کہ آپ اس بجٹ پر اپنا رائے دیں. سر بجٹ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بجٹ آئے گا تو NFC ایوارڈ کے بعد آئے گا. میں انتظار کر رہا ہوں NFC کا کہ جو 2010 کے بعد ابھی تک نہیں آئی. NFC جس میں ہم سب صوبوں کا حصہ ہوتا ہے، کلیکشنز کا پتہ چلتا ہے، فیڈرل کٹی ہے کتنی، اسے ہمیں ملا کتنا. 2015 میں آنا تھا، نہیں آیا. 2020 میں آیا، نہیں آیا. اب 24 چل رہا ہے. 2018 کی میں کیا ذکر کروں کہ جس کے اس وقت کے پرائم منسٹر نے کھلم کھلا کہ سندھ میں ایک چھوٹے صوبے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ اس NFC ایوارڈ نے تو ہمیں کنگلا کر دیا، وفاق کو کنگلا کر دیا. صوبے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا. تصور ہمارا یہ تھا جب NFC ایوارڈ اناؤنس ہوا تھا. یہ صحیح ہے کہ صوبوں کو زیادہ حصہ ملا اور وفاق کو کم ملا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وفاق جو ہے صوبہ سندھ کو ایسا کہے کہ سندھ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ الفاظ بھی ہم نے سنے تھے. وہ زمانہ گزر گیا اور یہاں ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں. سر مجھے ایک بات پہ تھوڑا سا اعتراض ہے کہ سندھ نے سفر کیا پچھلے سال 10 مہینے نگراں حکومت ہوئی. نگراں حکومت کے زمانے میں سینسس کا بہانہ تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا تھا.
सेंसस के दौरान हमारे ऊपर तरक्कियाती फंड इस्तेमाल करने की मना की गई। यहां कहा गया फ्रीज हो गए अकाउंट्स, जो अप्रूव्ड स्कीम्स थे उन पर भी काम होना बंद हो गया और ये 10 महीने हुआ। उनको ये एहसास नहीं था कि सिंध ने सैलाब में बहुत कुछ नुकसान उठाया है। 2022 का सैलाब हम सबके सामने और दुनिया के सामने है कि जी 22 में कितना नुकसान हुआ सिंध का, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आया और हमारे तरक्याती काम, अप्रूव्ड तरक्याती काम खत्म कर दिए गए, बंद कर दिए। हम इलेक्शन कमीशन को जाके मिले, हमने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, हमने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, लेकिन टस से मस नहीं हुई हुकूमत और इस तरह से हमारे 10 महीने जाया हुए। और ये 10 महीने सिंध के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा सा अफसोस ये है कि किसी ने इस तरफ इशारा नहीं किया, किसी ने निगरान हुकूमत की इस चीज को हाईलाइट नहीं किया जो होना चाहिए था। लेकिन वो 10 महीने हमारे गुजर गए, मजबूर हो गई सिंध हुकूमत, मजबूर हो गई और कहने पे मजबूर हुई कि हम नई स्कीमें नहीं दे सकते, जो चली हुई स्कीमें उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो चली हुई स्कीमें जो हैं, वो अप्रूव्ड स्कीमें जो थी, उसको टाइम कंप्लीट करने का फिर भी 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, लेकिन चले ये ठीक है। वैसे मुझे है कि चीफ मिनिस्टर साहब को कहूं कि सोचो जरा, फिर से सोचो। वैसे भी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए जब भी हम बात करते थे तो 80% ऑन गोइंग पर होता था और 20% पर सिर्फ न्यू डेवलपमेंट की बात होती थी। इसलिए हम सोच रहे थे कि कहीं इस पर रिकंसिडर किया जाए कि जी डेवलपमेंट सेक्टर को बिल्कुल बंद न करो, क्योंकि जरूरियात जिंदगी तो हर जगह है। ये सिंध के बाशिंदे तरक्की के NFC अगर अनाउंस हो जाता तो क्या मुझे ज्यादा मिलता या कम मिलता? और कोई भी मुल्क जब यहां कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हर 5 साल के बाद NFC आना चाहिए, तो फिर मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। न निगरान हुकूमत ने कोई कमीशन बनाया, न नई हुकूमत ने कोई कमीशन बनाया, और बस ये अनाउंस कर दिए गए जो कर दिए। हाँ, ये हकीकत है कि 900 अरब रुपए की डेवलपमेंट की रखा गया है उसकी मद में। मुझे जहां तक याद पड़ता है सर 1996 का था, जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं PND में था। उस वक्त डेवलपमेंट था 15 अरब रुपए का, अब है 900 अरब रुपए का। जब इस तरह की सूरत हाल आती है, भले डीवैल्यू हुआ पैसा, लेकिन तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, हर एक की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं कि अब इतना कुछ है तो इतना कुछ होगा। इसलिए यहां जो भी दोस्त बैठे हुए जिन्होंने भी कुछ कहा है, इस 900 अरब को सोचकर ही याद कहिए 900 अरब में कितना होगा। ये जो बात कर रहे थे वो एक्चुअली मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में महकमा जाती जाफिशानी का तज़किरा कर रहे थे कि जी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो भी रह जाती हैं तो चलती नहीं है, बिना तैयार नहीं करते, कोई ना कोई उस पर तवज्जो नहीं देता, और हम फिर साल गुजर जाता है, फिर दूसरी बातें करते हैं, फिर दूसरी बातें करते हैं। मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट कैपेसिटी बढ़ाने की मैं समझता हूं अशद जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये चीजें अगर कम हैं तो उसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हम छोटे छोटे मसाइल तो कर सकते हैं। छोटे छोटे मसाइलों के लिए सूबाई हुकूमत है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी है। इन सारी चीजों को नजर में रख के छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अफसोस लोकल बॉडी में यूनियन काउंसिल्स हैं। यूनियन काउंसिल को हर महीने की फंडिंग होती है। यूनियन काउंसिल फंडिंग के बाद जब उनसे कोई हिसाब किताब मांगता है कि भाई क्या किया तुमने, बोला सी सारे पैसे तो चले गए तनख्वाह में, बाकी तो कुछ बचा नहीं डेवलपमेंट के लिए। जबकि OZT शेयर अगर यूनियन काउंसिल को दिया जाता था तो उसका मकसद यही था कि छोटी मोटी वहां की तरक्याती स्कीमें चलती रही। कहीं कलवर्ट बन गया, कहीं नाली बन गई, कहीं पेवर ब्लॉक लगा, कोई कुछ हुआ, इस तरह की बात लोकल बॉडी सिस्टम में कमजोरी है। लोकल बॉडी सिस्टम को जरा थोड़ा सा फिर से देख लेना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि जी OZT शेयर बढ़ रहा है, OZT शेयर बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन OZT शेयर जो बाकी बढ़ाया जा रहा है
یا تو پھر اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کرو کہ ان 5 لاکھ میں یا 6 لاکھ جو آپ کو ایکسٹرا مل رہے ہیں اس میں یہ چیزیں کرنی ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یونین کاؤنسل کو 5-6 لاکھ روپے ہر مہینے کے ملتے، اب 10-12 لاکھ روپے ملیں گے، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ بات ضرور ہوگی، آج نہیں تو کل ہوگی۔ یہاں اوور سٹافنگ ہے، لوکل باڈیز میں امپلائیز جس طرح سے ہیں آؤٹ آف ڈسٹرکٹ بھی آ جاتے ہیں، جوائننگ مل گئی، جب بھی مل گئی اور اس کے بعد وہاں بیٹھے۔ لیکن پہلے ٹیچرز کے لیے کہا تھا کہ گوسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ جی گوسٹ لوکل باڈیز کے امپلائیز ہیں، کیونکہ وہ آتے نہیں ہیں ڈیوٹی پر اور تنخواہ لیتے ہیں۔ تنخواہ کا الزام کبھی چیئرمین پہ لگ جاتا ہے، کبھی ان پر لگ جاتا ہے۔ اس چیز کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، یا تو پھر حکومت اپنے اوپر لے لے، تنخواہیں تو ویسے ہی دے رہے ہیں، وہ ان کے اپنے اوپر لے لے، رائٹ سائزنگ کر لے، دیکھ لے کہ کون سے جائز ہیں کون سے جائز نہیں ہے۔ لیکن وہاں لوکل ڈیولپمنٹ ہونی ضرور چاہیے۔ بڑے بڑے روڈ ہم نے بنا لیے ہیں، بہت بڑی اچھی بات ہے۔ سندھ وہ نہیں رہا جو پہلے 15 سال پہلے تھا یا 20 سال پہلے تھا۔ یہاں آرٹریز جو بھی ہیں شاندار ہو گئی ہیں، پہلے ہچکولے آتے تھے، پہلے دھکے لگتے تھے، اب نہیں ہے، سموتھ سیلنگ ہے اپنی جگہ پہ، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن میرا گاؤں انتظار کر رہا ہے، یہ میرے بھائی اگر پانی کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر گاؤں والے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پبلک واٹر سپلائی اسکیم کیوں بند ہے؟ سینکڑوں واٹر سپلائی اسکیمیں جو نان فنکشنل ہے۔ اب تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میرا ٹارگٹ ہے کہ سب کو میسر ملے پانی میٹھا پینے کو، جس کے لیے وہی واٹر سپلائی اسکیمیں ہی کام آئیں گی۔ لیکن جو چل رہی تھیں جو بند ہو گئی ہے ان کو دیکھ بھال کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے ہی گاؤں کچھ اور زیادہ کچھ حاصل کر سکے گا، گاؤں کی شکایتیں کچھ کم ہوں گی۔ میرا مقصد تو یہ ہوگا کہ بڑی بڑی اسکیمیں آپ نے بنا لی، کراچی کو مبارک ہو، بڑے بڑے پروجیکٹس کراچی کو مبارک ہو، انڈر پاسز، اوور پاسز، فلاں 6 لینز کی روڈ سب مرد، لیکن میرے گاؤں میں کچھ نہیں ہے۔ میرے گاؤں تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں فارم ٹو مارکیٹ روڈ کی طرف توجہ دی جائے، بات تقاضا کر رہے ہیں کہ میرے گاؤں میں پیور بلاک لگے، میرے گاؤں میں کوئی نالی بنے، میرے گاؤں کو پانی ملے۔ یہ پانی ان کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات، لوگ مرتے ہیں اپنا گزر کرنے کے لیے، گزارا کرنے کے لیے پانی چاہیے، پانی چاہیے جو ایگریکلچر کے لحاظ سے چاہیے۔ 2022 میں سیلاب آیا، بارشیں ہوئیں، تباہیاں ہوئیں، لیکن ابھی وہ ریسٹوریشن نہیں ہوئی، وہ ڈرینز ویسی کی ویسی ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ اب یہ سردار خان کل بیٹھ کے کھڑا کہتا ہے کہ جی میں نے ڈرین کو اپنے پیسوں سے ٹھیک کرایا، ڈریجر منگائے ہیں، ڈمپر منگائے ہیں، فوٹو دکھا رہا تھا، ویڈیو دکھا رہا تھا۔ اب اگر ہم خود سے کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر تقاضا تو حکومت سے ہی ہوتا ہے کہ جی وہ ڈرینز پر کیوں توجہ نہیں دے رہی۔ یہ جب سوال اٹھتا ہے کہ کل کو جی سیلاب آئے گا، کل کو بارشیں آئیں گی، تو کیا آپ اس کی پانی آئے گا ڈرین سے جائے گا، RBOD میں جائے، منشر میں جائے، سمندر میں جائے، جدھر بھی جائے، لیکن اگر آپ پانی کے نکلنے کا رستہ ہی نہیں بنائیں گے تو پھر جائے گا کدھر پانی؟ اس لیے میری سمجھ کے مطابق تو یہ ڈرینز بہت ضروری ہے۔ ڈسٹریبیوٹریز، اریگیشن کی ڈسٹریبیوٹریز، اس کی ڈی سلٹنگ وار فوٹنگ پہ ہونی چاہیے، وار فوٹنگ پہ ہونی چاہیے کہ ڈی سلٹنگ ٹھیک ہو، اریگیشن کا سسٹم ٹھیک ہو۔ ہم فخر کرتے ہیں سکھر براج کی اریگیشن سسٹم پر، آج ہم ڈیزاسٹر کا انتظار کر رہے ہیں۔ 2 گیٹ گر گئے، 8 دن کا مہربانی کر کے جہاں خان شروع صاحب نے کہہ کے چلے گئے، لیکن ٹھیک ہے اگر 8 دن ہیں تو شاید گزارا ہو سکے، کیونکہ ہمارا جو سیڈ کی نرسریز ہیں وہ سوکھ رہی ہیں، ہر ایک کے پاس ٹیوبل نہیں ہے، اور ٹیوبل ہوگا تو اس کے اوپر انجن لگے گی تو ڈیزل لگے گا۔ یہ کر کے جا کے بیج کو پانی میسر تبھی ہو سکے گا جب آپ کے پاس یہ ہتھیار میسر ہو، ابھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ رائس ایریا کی جو بات کر رہے ہیں ہم، رائٹ بینک کی بات کر رہے ہیں، رائٹ بینک کے ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں، یہ سب وہاں صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہاں بیج جل رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جی سکھر براج پھر سے فنکشنل ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈی سلٹنگ کا ابھی بھی ٹائم ہے، چلو پانی نکل گیا ہے، پانی میں بھی تھوڑی بہت
खुदाई हो सकती है, भल सफाई हो सकती है, ड्रेन्स में भी पानी आ गया है, लेकिन अभी जब पानी रुक गया हुआ है तो फिर मौका है तो हम उसको तवज्जो दें। और इरिगेशन, लोग सिर्फ ये चाहते हैं मुझे पानी मिले, मैं जिंदगी संवार लूंगा, अपनी धरती को सरसब्ज कर सकता हूं, वो कर लेंगे। सर, चीफ मिनिस्टर साहब को भी पता है कि 900 अरब रुपए की एडीपी रखी हुई है, लेकिन क्या हम गारंटी करते हैं कि वफाकी हुकूमत आखिर में आके ये नहीं कहेगी कि जी 100 अरब की कटौती कर दो? क्योंकि हुआ 2018 से 2020 तक या 23 तक ये बातें हुई कि जी हमने रखा, बनाया प्रोग्राम, लेकिन हुक्म हुआ कि जी 150 रुपया काट दो, 100 रुपया काट दो, हमारे पास पैसे हैं नहीं। ये बातें भी इंश्योर करनी पड़ेंगी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, हमारे सिंध को एज ए सूबा डिमांड करता है कि भाई इंश्योर करो कि हमें डेवलपमेंट के पैसे मिले, नौकरियों के पैसे, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सब कुछ तो मिलती रहती है, मिलेंगी, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा उसके ऊपर कटौती कटती है, तलवार गिरती है और वो फिर खत्म हो जाता है, हमारी उम्मीदें टूट फूट जाती हैं। मैं अर्ज कर रहा था सर, लोकल गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत मैंने बात कर ली, इरिगेशन की भी थोड़ी सी बात कर ली, वे फॉरवर्ड की तरफ हर एक सोच रहा है। मैं चाहता हूं मेरी कच्ची आबादी न रहे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो। मुमालिक में इनका एक इंतजाम है। एक दफा मुझे बेनजीर भुट्टो साहब अपने साथ ले गए टर्की, अंकारा, देखा एक तरह की इमारतें बनी हुई है, तो मैंने पूछा ये क्या है? बोला ये गरीब लोगों के रहने की जगह है, एक ही डिजाइन, एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कुछ भी है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में भी हो सकता है। हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं उन एराजियों को, उन कच्ची आबादियों को, और हम बेहतर जिंदगी चाहते हैं उन लोगों के लिए जो उस कच्ची आबादियों में रहते हैं। ये वाफड के लिए एक मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर इसमें तवज्जो दी जाए तो मैं समझता हूं अच्छा होगा सिंध के लिए। एजुकेशन का किसने नहीं माना, कितनी तकालीफ है, लेकिन किसी तरह से भी करके, कुछ भी करके 5 अरब रुपए है तो 5 अरब रुपए, ये मिसिंग फैसिलिटीज, ये टूटे हुए स्कूल, ये बगैर फर्नीचर के स्कूल, ये जो बच्चों पर ये जो मनफी असरात डालते हैं, इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नए स्कूल खोलने वाली बात तो है नहीं, नए स्कूलों के लिए तो हो सकता है शायद पाबंदी भी हो कि नए स्कूल बना नहीं सकते, लेकिन जो है स्कूल, हम कहते हैं कि जी इनरोलमेंट बढ़ाओ। ठीक है, हुकूमत ने कोशिश की, अपने तौर पे 38,000 स्कूल बना दिए, सब कुछ हुकूमत ने कोशिश की, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को भी इतना कुछ सपोर्ट किया कि जी स्कूल कोई भी खोल सकता है। हम हर स्टूडेंट के पर हेड फीस भी बढ़ा दिए, 300 रुपए पहले होती थी, अब तो 10-1200 हो गई है। ये भी इनरोलमेंट बढ़ाने की है। जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें भी जब तक आप एडिशनल क्लासरूम्स नहीं देंगे तो ज्यादा बच्चे कैसे आएंगे? हमने कर लिया, उस्तादों को थोड़ा सा गिरफ्त में ले आए थे जो बायोमेट्रिक का हुआ बंदोबस्त, लेकिन वहां कोई ना कोई हम जुगाड़ कर लेते हैं अपनी जगह पे, कुछ ना कोई फिर भी गलती बातें हो जाती है, लेकिन ये तरीके मैनेजमेंट के हैं। पॉलिसी से किसी को इख्तिलाफ नहीं, जो कुछ रखा गया है अच्छी डायरेक्शन में रखा गया है। हेल्थ के लिए अगर बढ़ाए गए पैसे तो हमें खुशी है कि जी हेल्थ के लिए बढ़ाए गए, एजुकेशन के लिए बढ़ाए गए तो अच्छी बात है। लोकल बॉडीज आए, जो कुछ भी है, बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स हैं, इन पर अगर अलोकेशन बढ़ाई गई है तो फिर मसला आता है हमारे पास यूटिलाइजेशन का। अक्सर अखबारात में एक हेडलाइन लग जाती है कि जी अंडर यूटिलाइज्ड सिंध। बहुत से महकमों के लिए ये अगर लिखा आता है कि जी इन्होंने पूरी तरह से पैसे यूटिलाइज नहीं किए। अभी भी किसी साहब ने खड़ा होकर कह दिया कि जी 75% हमने यूटिलाइजेशन की, नहीं पहुंचे, 90% पे नहीं पहुंचे। चंद डिपार्टमेंट्स हैं जो यूटिलाइजेशन में 90% से अबव चले जाते हैं, लेकिन ये यूटिलाइजेशन का, अंडर यूटिलाइजेशन का भी मैं समझता हूं कि मसला है और उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बाकी रही बात, अभी एक मेरे भाई ने खड़े होकर कह दिया लाल पीला काला डैम बनाओ, लाल पीला काला डैम बनाओ। मेरे साहब आपकी खिदमत में गुजारिश है, अभी बादशाह डैम बन रहा है, अभी मनंद डैम बन रहा है,
वफाकी हुकूमत कहीं से कर्जे लेके बनाने की कोशिश कर रही है। ये डैम एक साल में नहीं बनते, सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तरबेला को बनते हुए कितने साल लगे थे, मंगला को बने हुए कितने साल लगे थे। हमने अगर कालाबाग डैम की मुखालफत की थी तो आपके लिए भी की थी, क्योंकि इसी दरिया से आपके पास भी पानी आता है। आपने कह दिया समंदर में जाने वाला पानी जाया हो रहा है। आपने कह दिया समंदर में जाने वाला पानी जाया हो रहा है। इधर से हम चीखो पुकार कर रहे हैं कि 35 लाख एकड़ समंदर के पानी की वजह से खत्म हो चुके हैं। समंदर इधर आ रहा है, पानी खा रहा है, जमीनें तबाह हो रही हैं। तो आप मेहरबानी फरमाएं कि थोड़ी रिकॉर्ड की दुरुस्त की जरूर रखें अपने जहन में कि डैम होगा, बादशाह डैम बने, भले आप कंट्रोल करो, भले सब कुछ करो, लेकिन ये जो कुछ भी दरिया सिंध पे हमला हो रहा है उसकी तरफ आप ये तवज्जो इस तरह से न करें कि काले को नाम दे दो सब्ज या पीला। नहीं, ये मसला नहीं है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पानी पर सबसे पहला हक होता है लोएस्ट राइपेरियन का, और पाकिस्तान का लोएस्ट राइपेरियन सिंध है। सिंध की तकालीफ को अगर नजरअंदाज करके आप उसके पानी को कंट्रोल करेंगे तो मेरी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। हमने इसी बुनियाद पर कहा था। मुझे नहीं मालूम उस वक्त की कौन सी हुकूमत थी, जाबराना हुकूमत थी या जो भी थी, उन्होंने अपना एतमाद खुद खोया। उन्होंने चलते चलते कह दिया कि जी हम 2 किनाल बना लेंगे, एक लेफ्ट बैंक में बनाएंगे, एक राइट बैंक में बनाएंगे और सिंध के पानी को कंट्रोल करेंगे। हमने मुखालफत कर दी। आप हमारे साथ थे, आप हमारे साथ थे उस मुखालफत में। इसलिए ये चीजें खत्म हो गई हैं, सो खत्म हो गई हैं, दफन हो चुका है। कालाबाग को दफन करने दो। सिंध असेंबली की आवाज में अहमियत होती है, सिंध असेंबली की आवाज में अहमियत होती है। पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं तो आवाज में क्या अहमियत नहीं होगी। रही बात कि मैंने आगे बढ़ना है, सिंध का सजन कहलाना है। सिंध के सजन के लिए तालीम हुआ, सेहत हुआ, गरीब लोगों की जिंदगी। आओ बजाओ तालियां और बजाओ डेस्क। जिस तरह से बिलावल साहब ने ये कारनामा कर दिखाया कि उसने जी 22 लाख घर बनाने हैं। अब घर बनाने वाली बात पे किसी को अगर पक्की छत दे रहे हैं तो इससे ज्यादा और क्या होगा। उनके बच्चे महफूज रहेंगे, उनका घर महफूज रहेगा, वो दर बदर नहीं होंगे, वो उस टेंट्स में नहीं रहेंगे जो रोडों के किनारों पे लगा के हमने उनको जलती हुई धूप में भी रखा। ये सारी चीजें, इस पर तवज्जो जैसे बिलावल साहब खुद कर रहे हैं, मैं समझता हूं सिंध हुकूमत भी उसको और ज्यादा इन्फोर्स करेगी कि ये चीजें हमें जल्दी मुकम्मल हो सके। उन्होंने कहा है कि जी 5 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, होंगे अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन जहां भी जाओ लोगों की आवाज ये आती है, सही मेरा घर कब बनेगा, मेरा घर कब बनेगा। ये सारी चीजें जो हैं ये अवाम के साथ मुंसलिक हैं, ये अवाम के साथ मुंसलिक हैं। मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं, हारी काट की बात हो रही है। हारी वो होता है जो जमीन का मालिक नहीं होता। यहां बात चल रही है कि हम जिसको 12 एकड़ जमीन हो उसको काट देंगे, ये फिर हारी को फायदा नहीं होगा। हारी वो है जो किसी की काश्त करता है, जो वहां मजदूरी करता है और वो 50% ले जाता है अपना हिस्सा, 50% जरूर अपना हिस्सा ले जाता है। और ये शायद वाहिद सूबा है, ये वाहिद एक सेक्टर है कि जिसमें मालिक अपने उस मजदूर को 50% शेयर दे देता है। इंडस्ट्री वाले नहीं देते, ये इंडस्ट्री वाले 50% अपने मुनाफे में नहीं देते, ये मुनाफे में आधा मालिक बना लेते हैं उसको। अगर वो आधा मालिक बन जाता है तो फिर हारी कार्ड के लिए अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आज नहीं तो कल, कि हम हारी कार्ड से तस्वुर क्या करते हैं। अवाम या आबादगार, इस चीज पर भी थोड़ी सी तवज्जो फिर से देनी चाहिए। और बाकी सारी बातें आपने कही हैं, मिनिस्टरों ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है, मिनिस्टर साहबा ने घंटे भर तकारीर की है, सब कुछ समझाने की कोशिश की है, अपनी शॉर्टेजेस की बात भी की है, अपने वे फॉरवर्ड की भी बात की है। यही तरीका होता है। और अपोजिशन को भी सलाम, तो हुकूमत को भी सलाम, जिन्होंने नेक नियति के साथ इस सिंध को बेहतर बनाने की एक जुस्तजू शुरू की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम और ज्यादा कामयाब होंगे। थैंक यू।